Assalamu alaikum guys. How are you doing today? Hope you all are doing well. Today we are going to discuss about Expo 2020 Dubai and our role as a taxi and limousine driver to make success this great and grand event. Guys, this is joint project. We all are part of this project, and how we can make success this grand event, what role we can play here. Guys, remember, Dubai is ready for hosting the whole world to participate, join and visit this grand event. Dubai is keen to serve them all remarkably. Dubai is expecting more from all stakeholders to make success this grand event. Guys, how can we make success this grand event? What role we can play here? We can play our role as a punctual driver. We need to provide timely service. So by punctuality, we can make success this event. We should be available on time. We should provide our services on time to all customers. Personal appearance. Yes, this is very important part. Every driver should take care of his personal appearance. Professional attitude. How we will deal our customer, how we will treat our customer. Taxi cleanliness. Taxi cleanliness, it is also very important part. Drivers should be clean as well as taxi should be clean. This is very important. Safety and security. We have to take care of the safety and security of the customers. Knowledge about Expo 2020. Guys, we should have basic knowledge about Expo 2020 to guide and respond positively to all the customer according to their questions. Remember, you are the face of Dubai. Be ready for having no customer complaint. We are ambassador of Dubai. We have to treat our customer remarkably to make this grand event success. This is about driver appearance and neatness. Very important, guys. If you want to be a good looking driver, then you will. Remember, your first best appearance will have best impression on customer. Guys, जैसे आपने अपने आप को बनाया हुआ है, अगर आपने अपीयरेंस को बहुत ही बेहतर बनाया हुआ है तो इसका कस्टमर के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट रहता है. Wear neat and clean uniform every day. Use company laundry services effectively. Dress neatly always. Wear company uniform. Close all shirts, button and cuffs. Wear company shoes. Use company in-house saloon facilities. Have a formal haircut, no long hairs. Have trimmed beard or clean shave. Avoid bad smell from your body and dress. Take bath before the duty on daily basis. Change innerwear and socks on daily basis. Use deodorant and perfume to avoid bad smell from your body. Wear RTA work permit always without fail.
योर अपीयरेंस विल स्पीक गुड फॉर यू। गाइस, इन चीज़ों का ख्याल रखना है हर ड्राइवर को, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है और पूरी दुनिया से यहाँ पे कस्टमर्स आएंगे। अराउंड 20-25 मिलियंस कस्टमर यहाँ पे आएंगे और उनको ट्रीट करना, उनको गाइड करना और उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना, ये हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का कस्टमर कंप्लेंट ना आए। हाउ वी विल ट्रीट आवर कस्टमर। Customer satisfaction is our first priority. Welcome to Arabia Taxi Dubai, sir, madam. Every customer we have to welcome. Greet every customer with smiling face. Assist every customer with luggage, loading and unloading irrespective of their gender and nationality. Guys, किसी का gender nationality को नहीं देखना, हर आदमी का, हर कस्टमर का लगेज में हेल्प करना। ऑलवेज आस्क पैसेंजर फॉर देयर डेस्टिनेशन एंड प्रिपेयर रूट। हर कस्टमर को उसका डेस्टिनेशन और उसका प्रिपेयर रूट ज़रूर पूछना। रिपीट एंड कंफर्म द डेस्टिनेशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। हर कस्टमर के डेस्टिनेशन को कंफर्म करना, रिपीट करना और कंफर्म करना, ताकि कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। Drive safely, smoothly and carefully without any violation of traffic rules. रोड के ऊपर सेफली ड्राइव करना, स्मूथली ड्राइव करना, एहतियात के साथ ड्राइव करना, महफूज तरीके से, ताकि कस्टमर को किसी किस्म का शिकायत का मौका न मिले और हम लोग किसी किस्म का वायलेशन ना करें रोड पर। Avoid all traffic violation. Inform passenger if you are diverting from plan route, taking detour route, alternative route. If you are diverting for any reason, you have to inform the customer and inform the customer about the reason. Yes, this is the reason, that's why I am diverting the route. If the customer is convinced, you can divert, otherwise continue the same way, continue the same route. Avoid usage of mobile phone during the trip. गाइस, सबसे बड़ा ख़तरा है मोबाइल फ़ोन को यूज़ ना करें जब आप लोग ड्राइविंग कर रहे हैं। ड्राइविंग सीट पे है तो मोबाइल यूज़ ना करें। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी कॉल है, हैंड्स फ्री और ब्लूटूथ से शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करें। अवॉइड अननेसेसरी चैट विद पैसेंजर अबाउट रिलीजन, कल्चर, पर्सनल मैटर्स एक्सेट्रा। गाइस, पैसेंजर के साथ इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ना करें। रिस्पेक्ट पैसेंजर प्राइवेसी टू इन्हांस देयर ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। गाइस, हर आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हर आदमी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, नेशनलिटी एंड रिलीजन। हमने सबको इक्वल ट्रीट करना है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट करना है। स्टॉप एज क्लोज एंड सेफ एज पॉसिबल एट द डेस्टिनेशन पॉइंट। मैंडेटरीली प्रोवाइड द ट्रिप रिसीट टू एवरी पैसेंजर विद प्रॉपर चेंज। Remind passenger about their personal belongings at the end of the trip. हर ट्रिप के बाद हर पैसेंजर के लिए प्लीज़ चेक किया करें और रिमाइंड किया करें कि गाड़ी में कुछ उनका पर्सनल सामान न रह जाए। थैंक यू फॉर यूजिंग अरेबिया टैक्सी दुबई, सर, मैडम। बिड फेयरवेल टू एवरी कस्टमर विद स्माइलिंग फेस। अलविदाई अल्फाज ज़रूर कस्टमर को स्माइलिंग फेस के साथ कहना कि अरेबिया टैक्सी में सफ़र करने का शुक्रिया। टैक्सी नीटनेस एंड क्लीनलीनेस। स्मूथ एंड शाइनिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। गाड़ी अंदर बाहर से स्मूथ और शाइनिंग होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी डैमेजेस, स्क्रैचेस एंड एबनॉर्मल साउंड्स। गाड़ी में कोई स्क्रैचेस, डैमेजेस ना हो, कोई एक्स्ट्रा एबनॉर्मल साउंड ना हो जो इरिटेटिव साउंड होता है। क्लीन एंड नीट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। फ्लोर मैट्स मस्ट बी क्लीन। फ्लोर मैट्स को भी क्लीन और साफ सुथरा रखे। सीट्स अपहोल्स्ट्री मस्ट बी फ्री ऑफ स्टैंड्स। सीट अपहोल्स्ट्री के ऊपर किसी किस्म के दाग धब्बे ना हो। एसी वेंट्स, डोर हैंडल्स, एशट्रे मस्ट बी फ्री ऑफ डस्ट, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बैड स्मेल। गाड़ी में कोई बैड स्मेल ना हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं रखना गाड़ी में जिससे बैड स्मेल हो। और अपनी सफाई का भी ख्याल रखना कि ताकि हमारे बॉडी से कोई बैड स्मेल ना हो। परफेक्ट कूलिंग सिस्टम।
कूलिंग सिस्टम बराबर काम कर रहा हो, परफेक्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो टैप रिकॉर्डर, रेडियो वगैरह या जो डीवीडी सीडी प्लेयर है वो बराबर काम करता हो। ऑल लाइट्स मस्ट बी वर्केबल, सब लाइट बराबर काम करने चाहिए। वर्केबल स्पेयर टायर विद नेसेसरी टूल्स। रनिंग टायर मस्ट बी इन गुड कंडीशन विद शाइनिंग व्हील कैप्स। डेजिग्नेटेड पैंट कलर एंड स्टिकर्स ओनली। सीसीटीवी कैमराज, मीटर, प्रिंटर, पोस, POS पॉइंट ऑफ सेल एंड हाला डिवाइसेस मस्ट बी इन वर्केबल कंडीशन। ये सब जितने भी सिस्टम्स है ये बराबर काम करता हो। अगर इनमें से कोई चीज़ ख़राब हो हम लोग रोड पे ना जाए, पहले हम लोग इसको रेक्टिफाई कर ले फिर रोड पे जाए, अदरवाइज कस्टमर कंप्लेंट के चांसेस होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी टूल्स लाइक फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड किट, ट्राइंगल किट, रिफ्लेक्टिव वेस्ट एंड बेबी सीट टू बी प्रेजेंट एंड फंक्शनल। गाइस ये सिस्टम है ये बराबर आपके पास होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर ये ज़रूरी चीज़ें हैं। फर्स्ट एड किट, ट्राइंगल किट, रिफ्लेक्टिव वेस्ट, ये सब आपके पास गाड़ी में होने चाहिए। बेबी सीट और ये बराबर फंक्शनल हालत में हो। टुगेदर वी विल मेक सक्सेस दिस ग्रैंड इवेंट इंशाअल्लाह। एक्सपो 2020 दुबई टैक्सी एंड लिमोजीन स्टॉप्स लोकेशन। गाइस जैसे पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि एक्सपो को 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है और 4 गेट्स हैं। 3 जोन सस्टेनेबिलिटी जोन है, मोबिलिटी जोन है, अपॉर्चुनिटी जोन है और गेट 4 है। सस्टेनेबिलिटी गेट, मोबिलिटी गेट, अपॉर्चुनिटी गेट और मेट्रो गेट, ये 4 गेट से चारों जगह से हम लोग पैसेंजर को पिकअप एंड ड्रॉप अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और नीचे थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन यहाँ आपको जोन का समझ आ जाए। थोड़ा सा इसको आप लोग स्क्रीन पे मैं थोड़ा टाइम के लिए रुक लेता हूँ तो आप लोग इसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं। आगे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस कर लूँगा ताकि हर ड्राइवर को उसका पार्किंग एरिया मालूम हो। पार्किंग एरिया को भी 2 हिस्सा में डिवाइड किया हुआ है, आगे मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। जैसे गाइस ये है मोबिलिटी पार्किंग। सो गाइस कलर वाइज हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। सस्टेनेबिलिटी का कलर होता है ग्रीन, मोबिलिटी का कलर होता है ब्लू, अपॉर्चुनिटी का कलर होता है ऑरेंज। तो यहाँ ये बोर्ड के जो कलर है ये भी जोन के हिसाब से है। अगर ये अपॉर्चुनिटी जोन है तो इसका कलर ऑरेंज होगा, अगर ये मोबिलिटी जोन है तो इसका कलर ब्लू होगा, और अगर ये सस्टेनेबिलिटी जोन है तो इसका कलर ग्रीन होगा। यहाँ गाइज आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर दिस बोर्ड, ओके, वेटिंग एरिया, दिस इज एक्चुअली स्टेजिंग एरिया और वेटिंग एरिया। यहाँ पे टैक्सी के लिए जो जगह है, जो स्पेस है वो 80 टैक्सीज़ का है। 80 टैक्सी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगर उनके कोई पर्सनल ज़रूरत है, उसको नमाज़ पढ़ना है, उसको खाना है, उसको वॉशरूम यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ इसी जोन में, वेटिंग जोन में वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, गाड़ी पार्क करके अपने ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद में आगे वो लोडिंग जोन में, जो यहाँ पे ये बोर्ड आपको इंडिकेट करता है, ये लोडिंग जोन है। जो यहाँ से हम लोग इसी बे में, यहाँ पे 4-5 बेज है, हर बेज में टैक्सीज़ को डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम लोग वहाँ वेटिंग जोन से निकलते हैं, यहाँ इस जोन में आ जाते हैं, तो इसी जोन में आपने फिर गाड़ी से उतरना नहीं है। यहाँ से आप तो यहाँ पे पैसेंजर का ड्रॉप अप भी कर सकते हैं, इधर से पैसेंजर का पिकअप भी कर सकते हैं, लेकिन इस जोन में एंट्री करने के बाद हर ड्राइवर ने गाड़ी से उतरना नहीं है, गाड़ी में ही बैठना है। जैसे पैसेंजर बैठे उसने मीटर स्टार्ट करके यहाँ इसी जोन से निकलना होता है। फिर ये लोडिंग जोन है, जो कि लोडिंग जोन में एट ए टाइम 48 टैक्सी यहाँ पे मुख्तलिफ बेज में एकोमोडेट हो सकते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से तकरीबन 4 या 5 बेज वहाँ पे टैक्सीज़ के लिए है। तो मुख्तलिफ बेज में 48 टैक्सीज़ यहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं एट ए टाइम। तो 48 टैक्सी एट ए टाइम पैसेंजर, 48 पैसेंजर को फिक्स 48 ट्रिप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका गाइस ख्याल रखना। वेटिंग जोन, स्टेजिंग जोन या स्टेजिंग एरिया,
ये यहाँ हमारे लिए अलग है, इसमें हम लोग वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग माइंड में रखें। यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क कर सकते हैं, उतर सकते हैं, अपने ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ लोडिंग जोन में आ जाते हैं तो लोडिंग जोन में हमने गाड़ी से उतरना नहीं है, गाड़ी में बैठ के यहाँ पे अपने लाइन में आ जाएंगे और जैसे हमारा नंबर आता है, पैसेंजर बैठता है, हमें इधर से निकलना पड़ता है। फिर यहाँ पे हमने गाड़ी से उतरना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ इसी मोबिलिटी जोन में कैसे जाना है, आपने एग्ज़िट 17 लेना है मोहम्मद बिन जायद रोड से। फिर आपने क्या करना है, बोर्ड को फॉलो करना है, मोबिलिटी पार्किंग जोन, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसी बोर्ड को आपने फॉलो करना है। जैसे आप यहाँ मोहम्मद बिन जायद रोड से एग्ज़िट नंबर 17 ले लेते हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको एक्सेस देता है इसी पार्किंग जोन में, इसी पार्किंग जोन में आप आ जाएंगे। ठीक है, ये है अपॉर्चुनिटी पार्किंग, अपॉर्चुनिटी जोन में। तो यहाँ पे गाइस ये है हमारा वेटिंग जोन, ये है स्टेजिंग एरिया, वेटिंग जोन, जो यहाँ पे हम लोग अपना गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, हम लोग अपने ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। कोई भी हमारा ज़रूरत हो यहाँ पार्क कर सकते हैं, अपने ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। और ये लेफ़्ट साइड में जो ये बेस है, इसी बेस में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो ये लोडिंग जोन है। यहाँ लोडिंग जोन में आगे हमने फिर टैक्सी से उतरना नहीं है, यहाँ से हमने पैसेंजर का पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ करना है। इधर यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे करना है। ठीक है, ये वेटिंग जोन है, ये पैसेंजर का पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ जोन है, लोडिंग जोन है। यहाँ से हम लोग पैसेंजर को पिकअप एंड ड्रॉप अप कर सकते हैं। तो यहाँ इस एरिया में आपने गाड़ी से उतरना नहीं है गाइस। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, पार्क करके अपने पूरे ज़रूरियात पूरे कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आगे यहाँ पे लोडिंग जोन में जब एंटर हो गए तो फिर गाड़ी से उतरना है। जैसे पैसेंजर बैठ जाते हैं, इमीडिएटली वहाँ से हमने मीटर स्टार्ट करके निकलना पड़ता है। इसके लिए गाइस हमने एग्ज़िट 21 लेना है मोहम्मद बिन जायद रोड से। एग्ज़िट 21 आपने लेना है, फिर आपने ज्वाइन करना है E71 को। जैसे आप 21 एग्ज़िट ले लेते हैं मोहम्मद बिन जायद, तो आप ज्वाइन करते हैं E77 रोड को। फिर आपने फॉलो करना है वर्ल्ड पार्किंग, अपॉर्चुनिटी पार्किंग एंड सस्टेनेबिलिटी पार्किंग, ये बोर्ड आपने फॉलो करना है। फर्स्ट राइट आपने मेन गेट से लेना है, और फर्स्ट राइट जब आप लेंगे तो आगे आपका लेफ़्ट साइड पे एक्सपो ऑफिस आएगा। एक्सपो ऑफिस के इमीडिएट बाद ये अपॉर्चुनिटी पार्किंग जोन है, जिसमें आप लोग एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग पैसेंजर को पिकअप एंड ड्रॉप अप कर सकते हैं, इधर वेट कर सकते हैं और आगे इन बे से आगे निकल के मेन रोड में आप लोग दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ जो टैक्सी और ई हेल लोड जोन है और स्टेजिंग एरिया है, यहाँ स्टेजिंग स्पेस है हमारे पास 112 टैक्सीज, 112 टैक्सीज can accommodate here in loading in staging zone, in this zone. Okay, they can wait, they can park. And loading zone base जो यहाँ पे है 28 taxis, okay, they can accommodate in loading zones. यहाँ पे जो loading zone है इनमें 28 taxis समा सकते हैं एक टाइम पे। सो एक टाइम पे 28 ट्रिप हम लोग यहाँ से इमीडिएट कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी जोन है गाइस, इसके बोर्ड ग्रीन कलर में होंगे और बिल्कुल इसी तरह से होंगे जैसे मैंने आपको बताए। लेकिन यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीटेड है, जैसे इनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आगे इसको अपडेट कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन इज़ आउटडेटेड एंड नीड्स टू बी अपडेटेड। लेकिन सेम है, आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से है जैसे अपॉर्चुनिटी मोबिलिटी जोन है। टैक्सी ई हेल्थ यहाँ पे स्टेजिंग एरिया 160 टैक्सी का है, जो वेटिंग हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और लोडिंग जोन का जो कैपेसिटी है वो 50 टैक्सीज का है कि 50 टैक्सी एट ए टाइम पैसेंजर लोडिंग जोन से पिकअप एंड ड्रॉप अप हो सकते हैं। ठीक है, मेट्रो गेट गाइस, ये एग्जीबिशन हॉल यहाँ पे है। एग्जीबिशन हॉल है जिसको हम लोग एक्सपो मॉल भी बोल सकते हैं, एग्जीबिशन सेंटर भी बोल सकते हैं। पैसेंजर मुख्तलिफ नाम से आपको बता सकते हैं कि मुझे एक्सपो मॉल में जाना है, एग्जीबिशन सेंटर में जाना है, एक्सपो एग्जीबिशन सेंटर। तो यहाँ मेट्रो स्टेशन है गाइस, इसी मेट्रो स्टेशन से लोग आ सकते हैं बाय मेट्रो। ठीक है, सो बाय मेट्रो जो लोग आते हैं यहाँ से, वो लोग जाने के लिए पॉसिबल है कि वो टैक्सी भी यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑल द टाइम पॉसिबल है कि मेट्रो अवेलेबल ना हो, या कुछ लोग मेट्रो को यूज़ करना ना चाहे, फिर वापसी में उनको दूसरी जगह पे जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो आपने क्या करना है गाइस, यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये एग्जीबिशन सेंटर है, एक्सपो मॉल है,
यहाँ मेट्रो से पैसेंजर आ सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस है एग्जीबिशन सेंटर को। और यहाँ पे मेट्रो के लिए आपने, मेट्रो पैसेंजर के लिए, एग्जीबिशन पैसेंजर के लिए आपने यहाँ पे इधर से राइट लेके, ये है स्टेजिंग एरिया और लोडिंग एरिया। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे स्टेजिंग एरिया जो है, जहाँ पे 83 टैक्सीज एट ए टाइम पार्क कर सकते हैं। और लोडिंग जोन में जब आप जाएंगे पैसेंजर पिक करने के लिए, तो आपने एट ए टाइम 30 टैक्सी, वहाँ पे 30 टैक्सी का कैपेसिटी है और 30 टैक्सी एकोमोडेट हो सकते हैं एक टाइम में। तो गाइस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आपने पैसेंजर का पिकअप एंड ड्रॉप अप सही तरीके से करना है। पैसेंजर को रॉन्ग पार्किंग में, रॉन्ग एरिया में ड्रॉप नहीं करना। और फिर वहाँ जो हमारा लोडिंग जोन है, लोडिंग जोन में हमने वो क्या करना है, डिसऑर्डर नहीं करना है। जो नज़म बनाया हुआ है, जो सिस्टम बनाया, सिस्टम को फॉलो करना है। लोडिंग जोन में हमने फिर टैक्सी से उतरना नहीं है, टैक्सी में बैठ के अपने नंबर का अपने नंबर का इंतज़ार करना है। जैसे पैसेंजर मिल जाते हैं इमीडिएटली वहाँ से स्टार्ट करके निकलना पड़ता है। तो गाइज़ ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।